Assalamu alaikum. Welcome to the first Hacktoberfest event we're having. We're having this collaboration with four different universities from Karachi, Lahore, and Jamshoro. This collaboration between DHS Sufa University, Superior Gold University, University of Education Lahore, and University of Sindh Jamshoro, and Virtual University Lahore. I'll start my event with the name of Allah, the most beneficent and merciful. And let's just start. Tarun, over to you. Thank you, Atik. Am I Uh, audible? okay. Yes, you're audible. Just give me a second. Let me set up the screens. So can you guys see my screen? Yeah. Yes. Okay. Uh, okay, so let me start. Good evening, everyone. Hope everyone is okay. My name is Tarun Kumar, and this is Hit with Git. This will be an introductory session on open source software with Git and GitHub, hosted in grand collaboration between the DSC chapters of DHSY University, Superior Gold University, University of Education, Virtual University, and University of Sindh. I thank you for all the collaborations, and I sincerely thank all the DSC chapter for inviting me as a guest speaker. तो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर द लिंक्स एंड प्लीज़ डू शेयर द लिंक एंड अगर बिफोर वी गेट टू द इंटरैक्टिव सेशन आई वुड होप कि अगर सब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर ही होगा. Let's get started. I'll first introduce what the event is about and who am I. तो इवेंट के बारे में बात करते हैं. तो इवेंट विल बी अबाउट अ फ्यू टॉपिक्स दैट आई ट्राई माय बेस्ट टू कवर एंड होपफुली आपको वो चीज़ समझ भी आ जाएगी. सबसे पहले कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट. Then we'll go on how we'll be collaborating and contributing to open source using tools of Git and GitHub. दोनों का merger कैसे होगा and how we'll be contributing to open source software and uh, what role does Git and GitHub play in this whole scenario. उसके बाद आपको मैं थोड़ा अक्टूबर फेस्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, व्हाट द इवेंट इज़ अबाउट एंड हाउ यू कैन win t-shirts and plant trees just by collaborating and contributing in the month of October. So this will be, hopefully this event will be good and hopefully at least all the participants will win the shirts and the trees they'll be planting. So let's get started with that in our mind. तो एक्सप्लेन करते हैं कि मैं कौन हूँ. तो इन व्हाट कैपेसिटी एम आई स्पीकिंग टू यू गाइस. तो सबसे पहले तो मैं BS कंप्यूटर साइंस का सीनियर हूँ. आई एम करंटली स्टडिंग एट DHSY यूनिवर्सिटी. आई एम द टेक लीड एट developer student clubs at DHSFY University, and furthermore, along with my studies, I am currently a data science intern at SeedCode.io. It's a leading AI and blockchain startup in Pakistan. Furthermore, I'm also a top-rated Python developer at Upwork and Fiverr, and I have been freelancing for the past 2 years. But during that whole career, I have been using Git for the last 3-4 years. I would say कि मैंने जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी, I have been using Git and GitHub in a manner कि हम कैसे अपना कोड collaborate कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं. And I am a huge fan of open source, so I hope I am able to transfer my knowledge and my experience to you guys in a successful manner. The concepts जो हम आज सीखेंगे, that will be open source, version control systems, Git, GitHub and Hacktoberfest, जो मैंने पीछे भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था. So एज इट गोज़, मैंने जितना पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि इट्स ऑलवेज यूजफुल कि हम अगर जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समहाउ साथ मर्ज कर सकें, साथ मैप कर सकें. तो व्हाट आई विल बी डूइंग राइट नाउ इसकी जो चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से हेल्प कर रही है, दैट इज आई विल क्रिएटिंग ए कॉन्सेप्ट मैप. उससे क्या होगा कि फॉर द ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आई एक्सप्लेन इन द सेशन टुडे, आई विल बी एडिंग देम टू अ कॉन्सेप्ट मैप एंड कनेक्टिंग देम टुगेदर, ताकि आपको भी समझ आ जाए एंड होपफुली आप उस चीज़ को यूज़ भी कर सकें और दूसरे लोगों को समझा भी सकें. सो राइट नाउ द कॉन्सेप्ट मैप इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, भी कुछ भी नहीं है. बट एज वी गो अलॉन्ग एंड एज आई एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट विल बी गोइंग थ्रू टुडे, आप होपफुली वो चीज़ समझ जाएंगे. ओके. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है. एंड दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम opensource.com.
It explains कि open source software is software with source code that admin can inspect, modify and enhance. तो अगर open source की literal meaning ले लें तो it means something जिसका it refers to an object or कोई एक entity जिसका जो source है, जिसकी origin है, वो open है. Anyone can view it, anyone can modify it, anyone can enhance it. In terms of software development, same चीज़ follow करती है कि भाई ऐसा कोई software जिसका source code मतलब कोड बेस जो है, जिस तरीके से वो कंपाइल हो रहा है, बिल्ड हो रहा है एंड ऑल द डेवलपमेंट बिहाइंड इट, वो सारी ओपन सोर्स है. आप उसको देख सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एंड आप उसको एनहांस कर सकते हैं. एनहांस इन टर्म्स ऑफ मॉडिफाई देखा जाए तो सेम चीज़ ही है. तो देर आर सम प्राइम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के जो आप यूजुअली यूज़ करते होंगे अपने डेली लाइफ में, एंड आई होप यू नो सम ऑफ देम. तो सबसे पहले आते हैं मोजिला फायरफॉक्स. इट्स अ रियली गुड ब्राउज़र जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ यूज़ करना, ऑल द सिक्योरिटी एंड ऑल द लेस शेडी स्टफ इट हैज़ एज कम्पेयर टू अदर ब्राउज़र्स. तो इसका सोर्स कोड ओपन है. यू कैन इंस्पेक्ट कि मोजिला फायरफॉक्स कैसे बनता है, हाउ द डेवलपर्स कोड इट, और आप उसमें फर्दर मोर अपना कोड भी डाल सकते हैं. इफ़ यू वांट अ फीचर आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं और उसमें एडिशंस भी कर सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स में. VLC मीडिया प्लेयर इज अनदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आई थिंक 90% ऑफ लोग जानते होंगे इसको, एटलीस्ट द पायरेट्स अमंग अस. तो VLC मीडिया प्लेयर एक काफ़ी एडवांस्ड कोडेक यूज़ करता है कॉल्ड वीडियो लेन. तो वो the performance of the video player itself is really good. So its source is also open. आप जाके GitHub में VLC media player का source code देख सकते हैं. It's using C++ and other languages. और अगर आप उसमें एडिशंस करना चाहें, उसमें कोई इशू आपको दिखे तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं. Furthermore, of course, the Linux OS. This is the one of the greatest projects in open source, जिससे I would say कि Git और GitHub start हो, जो मैं आपको आगे जाके explain करूँगा कि क्या होता है. Linux OS is an operating system जो completely open source है. Linux का kernel, how it works and distros सारे open source, mostly distros open source होते हैं. और इस operating system को काफ़ी लोग इसलिए prefer करते हैं क्योंकि it's lightweight, काफ़ी controllable है. आप उसमें एडिट्स वगैरह कर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली मॉडिफाई करके अपने तरीके से यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अदर आई एम सॉरी, एनीवन सेइंग एनीथिंग? खैर, कंटिन्यूइंग. तो लिनक्स ओएस के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करके अपना डिस्ट्रो यूज़ कर सकते हैं, और ये दिस इज़ कॉमनली यूज्ड इन सर्वर्स और डेवलपमेंट पर्पसेस एंड ऑल दैट. मूविंग ऑन. तो अगर जैसे मैंने कॉन्सेप्ट मैप का पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, तो सिंस वी लर्नड ओपन सोर्स, तो हम ओपन सोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट? एंड एज वी गो अलॉन्ग मैं दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू नोटिस अ कनेक्शन एंड रिलेशन बिटवीन देम. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम उसके आइडिया को डिराइव करते हैं पहले. तो मोटिवेशन क्या है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया गया. सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि हाउ डू यू शेयर योर डॉक्यूमेंट्स कोड विद योर प्रोजेक्ट पार्टनर्स. सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 की बात करते हैं, तो यूजुअली क्या होता था कि हम या तो अपना जो कोड लिखते थे, प्रोजेक्ट बनाते थे, ICT एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज होंगे. तो यूजुअली डॉक्यूमेंट्स और कोड शेयर कैसे होता था? यू आइदर अपलोडेड समवेयर, गूगल ड्राइव, ईमेल कर देते हैं दोस्तों को, वो काम करते थे अपना, फिर आपको वापस भेज देते थे, या आप उसको USB वगैरह में देते थे, राइट? I remember a huge mishap in my ICT project जो मैंने USB में रखा था और वो USB गुम हो गई थी. तो the motivation behind me learning it was started from there. Okay, moving on. तो अगर आपने कोड शेयर किया, राइट, एंड the other person is working on the code or the document, तो क्या जो मेथड्स जो ये आपने यूज़ किए शेयर करने के लिए कोड या डॉक्यूमेंट, क्या ये चीज़ें अलाउ करते हैं? नंबर 1, विदाउट शेयरिंग बैक एंड फोर्थ मेक चेंजेस इन सिंक. मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट है, आप वहाँ पे दूसरा बंदा भी उसमें कुछ भी चेंजेस करें, साइमल्टेनियसली अगर आप भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या वो सिंक अप हो सकते हैं विदाउट यू शेयरिंग द कोड बैक एंड फोर्थ? मतलब गूगल ड्राइव में बंदा कोई चेंजेस करके अपलोड करें, फिर आप डाउनलोड करें, मैं यहाँ से चेंजेस करूँ, फिर अपलोड करूँ, फिर डाउनलोड करूँ. इज इट पॉसिबल कि हम ये चीज़ें ना करें और सिंपली उसको सिंक अप कर सकें?
राइट. दिस इज नॉट पॉसिबल इन द कॉमन मेथड जो हमने ऊपर डिस्कस किया था. सेकेंडली, क्या आप ये जान सकते हैं कि जो चेंजेस हुए थे वो कौन से चेंजेस थे, क्यों किए गए थे और कब किए गए थे, विदाउट द अदर पर्सन एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन डेफिनेशन इन एक्सप्लिसिटली. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने चेंजेस किया, मैंने दोस्त को बुलाया एंड वी डू अ वर्चुअल मीटिंग ऑन गूगल मीट और वहाँ पे एक्सप्लेन करें क्या चीज़ें क्या है. इट्स नॉट पॉसिबल इन द अबव डिस्कस मेथड, राइट. तो तीसरी चीज़ ये आती है कि आप सीरीज ऑफ चेंजेस में आगे पीछे जा सकते हैं. तो मतलब मैंने अगर डॉक्यूमेंट्स में 5 चेंजेस किए हैं, 5 हेडिंग्स डाली हैं और मैंने दोस्त को दे दिया, और वो दोस्त बोलता है कि यार लास्ट 2 हेडिंग्स जो है ना वो सही नहीं है, उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ इन सच अ वे कि उसकी पुरानी वाली डेरिवेशन ख़राब ना हो. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन टू गो बिटवीन द सीरीज ऑफ चेंजेस. ऐसे नहीं कर सकता कि वो 2 जो हेडिंग्स डिलीट करे फिर जाके देखे कि पहले मैंने क्या काम किया था उसके बाद क्या काम किया था. इट्स नॉट पॉसिबल कि क्योंकि नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, नॉर्मल कोड जो शेयर होता है, ये चीज़ें उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें ये चीज़ें मालूम कर सकें कि किस वक्त कौन से चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं और कैसे आप वहाँ पे जा सकते हैं, राइट. तो अगर मैं इस डेफिनेशंस को, इन 4 फीचर्स को आगे लेके चलूँ तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम से ये सारी चीज़ें देता है एंड मोर. तो होते क्या हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम? तो दीज आर टूल्स दैट कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस. तो अगर आप कोई डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स होते हैं जिसको ब्लॉब्स बोल सकते हैं आप, और वो ब्लॉब्स में कुछ चेंजेस होंगे, राइट. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सारे चेंजेस को जो इन अवर केसेस सोर्स कोड्स होते हैं, लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, उनको सारे चेंजेस को एक्नॉलेज करता है, राइट. और उसका एक ट्रैक रखता है कि आप उसमें आगे पीछे जा सकें सारे चेंजेस में. कैसे? अच्छा, ये ट्रैक रखने के साथ साथ कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा भी देता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम. कोड कोलैबोरेशन. अगर मुझे पता है कि भाई एक सोर्स कोड में क्या क्या चेंजेस किस वक्त क्या क्या क्यों क्यों हुए थे, तो मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ दूसरे बंदे के साथ, राइट. कि वो कोड जो उस वक्त डॉक्यूमेंट उसमें काम हो रहा है, वो बंदा ऊपर वाले किसी मॉडल पे काम कर रहा है, मैं नीचे वाले मॉडल पे किसी पे काम कर रहा हूँ. एंड सिंस वी कैन ट्रैक चेंजेस ऑफ ऑल द कीप ट्रैक ऑफ ऑल द चेंजेस दैट वी मेक, तो वो भी पता कर सकता है कि भाई मैंने क्या चेंजेस किए थे और मुझे पता चल सकता है वो बंदे ने क्या चेंजेस किए थे. कीप अ हिस्ट्री ऑफ वर्जन्स. जितने भी आपने चेंजेस करें, जितने भी आपने मॉड्यूल्स ऐड किए हैं, जितने मॉड्यूल्स आपने हटाए हैं, वो सारे ट्रैक हो सकते हैं यूजिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. मेटा डेटा अबाउट वर्जन्स. आपको ये भी पता चल सकता है जो चेंजेस हैं, जो वर्जन्स आपने बनाए हुए हैं, उसमें किसने क्या चेंजेस किए, कब किए, क्यों किए, क्या क्या चेंजेस किए. दिस ऑल मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. और आप फर्दर मोर बैक एंड फोर्थ वर्जन्स भी जा सकते हैं कि भाई मैंने जो फॉर एग्जांपल COD वॉरफेयर आई थिंक खेली होगी काफ़ी लोगों ने, तो उसमें जो न्यू गेम मोड्स आए हैं, इट्स पॉसिबल फॉर यू टू गो टू वर्जन जिसमें कुछ गेम मोड्स नहीं हो एंड गो बैक टू द करंट वर्जन जिसमें सारे गेम मोड्स हों. दिस इज पॉसिबल फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर लें तो you can move forward and backward in all the changes you have made on all the versions you have created the snapshot of. अब snapshot क्या होता है कि एक करंट वर्जन आपके डायरेक्टरी में जो भी चेंजेस हैं, कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे अभी करंटली वर्किंग डायरेक्टरी है, राइट, सब कुछ काम कर रहा है इसमें, तो आई टेक अ स्नैपशॉट. मैं आगे जाऊँगा कुछ फीचर्स इम्प्लीमेंट करूँगा, आई टेक अनदर स्नैपशॉट. तो ये दोनों स्नैपशॉट्स आर काइंड ऑफ वर्किंग वर्जन्स ऑफ योर डायरेक्टरी, जिसको वर्जन्स भी बोलते हैं. इसको मैं आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करूँगा. ओके. इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स होते हैं जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ द करंट मीटिंग है, और होपफुली आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको स्किप करने में कोई मसला नहीं होगा. तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स किस किस तरीके के होते हैं और क्या क्या आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करते होंगे. सबसे पहले आते गूगल डॉक्स. रियली कॉमन, तकरीबन आई गेस सब ने यूज़ किया होगा, राइट. तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन दिखा भी देता हूँ कि कैसे गूगल डॉक्स एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है. तो इफ़ आई, मेरी लिंक यहाँ पे खुली हुई है, राइट. तो इफ़ आई गो टू द वर्जन्स, मैं इस अगर लिंक को क्लिक करता हूँ, यू कैन सी द वर्जन हिस्ट्री, राइट. उस वर्जन में जाके आप ये भी मालूम कर सकते हैं, अगर आप डिटेल्स में जाएं, यू कैन वेरीफाई कि भाई किसने चेंजेस किए, राइट, कब किए, दिस इज़ द व्हेन, दिस इज़ द हु, और क्या चेंजेस किए. दीज आर द चेंजेस इन ग्रीन और रेड. जो अगर मैं ऊपर जाके देखूँ तो दिस इज ग्रीन, राइट.
तो मैंने 24 अक्टूबर को ये चेंज किया था. तो यू कैन वेरीफाई दिस यूजिंग दिस सिस्टम. अच्छा, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा था ऑल कमिट. अब ऑल कमिट क्या होता है? एक ऐसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो सारे चेंजेस का एक स्नैपशॉट बनाए. मैंने आपसे पहले क्या एक्सप्लेन किया था कि स्नैपशॉट हम खुद बनाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी का. लेकिन अगर स्नैपशॉट्स आप नहीं बनाना चाहते और ऑल कमेंट करना चाहते हैं कि भाई हर चेंज मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो बेशक मैं अपना नाम पूरा ना लिखूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोड़ भी दिया. गूगल डॉक्स विल डेफिनेटली रिकॉर्ड दिस चेंज विदाउट मी एक्सप्लिसिटली डिफाइनिंग कि भाई आपको ये चेंज एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना. तो दिस इज ऑल कमिट, मतलब जो भी आप चेंज करेंगे सारे कमिट हो जाएंगे. फर्दर मोर एक दूसरा एग्जाम्पल आता है नोशन का. नोशन इज सिमिलर इन द ऑल कमिट सिस्टम. अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपडेट्स में जाऊँ तो आई कैन ट्रैक ऑल द चेंजेस दैट आई हैव मेड, और इसमें जाके मैं उस वक्त जा सकता हूँ उस वक्त क्या चेंजेस किए थे और किसने किए थे. तरुण कुमार लास्ट वेडनेसडे कब किए थे. अच्छा, इसमें ऑल कमिट सिस्टम्स में एक यूजुअली चीज़ जो मिसिंग होती है दैट इज़ द वाई. हमने तो विच एंड व्हाट तो पता चल गया कि भाई क्या क्या चेंजेस किए थे, व्हेन कब किए थे ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, बट वाई इज समथिंग वी कैन नॉट वेरीफाई इन ऑल कमिट सिस्टम्स. तो आगे चलते हैं. तो वाई इज इम्पॉर्टेंट, जो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन उठाया था कि नोइंग द वाई. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये मेथड एक कम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि क्या चेंजेस किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, ताकि अगर कोई बंदा दूसरा आके उसको देखता है तो ही नो कि भाई क्यों चेंजेस किए गए थे ये. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड आई होप आपको समझ आ गया हो कि हाउ गूगल डॉक्स इन नोशन और ऑल कमिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जो सारे चेंजेस का एक ट्रैक रखते हैं, और आप यू कैन मूव बैक एंड फोर्थ वर्जन्स. अच्छा, मूव बैक एंड फोर्थ वर्जन्स कैसे हुआ था कि अगर मैं वापस जाता हूँ एंड आई गो टू दिस वर्जन, ठीक है, तो आई कैन मूव बैक टू दिस वर्जन. हाउ? मैंने अगर इसमें डिटेल में गया तो आई कैन जस्ट रिस्टोर दिस वर्जन. तो मैं उस चेंज पे वापस आ गया कि भाई उस वक्त क्या चेंजेस हुए थे. तो दिस इज समथिंग यू कैन आल्सो डू विद गूगल डॉक्स कि आप पुरानी वर्जन में आ गए एंड मूव बैक टू द फ्रंट वर्जन, न्यू वर्जन्स. ओके, तो नाउ वी नो व्हाट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आर. वी एडेड टू द कॉन्सेप्ट मैप. तो हमारे पास करंटली ओपन सोर्स भी समझ आ गया, हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स भी समझ आ गए. मूविंग फॉरवर्ड, अब गिट क्या है? हाउ डज गिट प्ले अ पार्ट इन ऑल दिस? तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट आई एक्सप्लेन्ड यू टुडे? सबसे पहले तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट यूज़ गूगल डॉक्स और नोशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से डिफरेंट फाइल्स होते हैं. अगर ये भी कर लेंगे भाई गूगल डॉक्स में, अगर बंदा कोड पेस्ट कर रहा है उसको चेंजेस वगैरह कर रहा है तो इतना तो कर सकता है, बट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजुअली काफ़ी ज़्यादा फाइल्स और डायरेक्टरीज वगैरह आते हैं आपके पास. तो अगर आप सी प्लस का अपना कोड याद हो किसी को, तो आप सिर्फ एक चीज़, एक फाइल नहीं लिखते थे. यू रोट द हेडर फाइल, यू रोट द सी प्लस प्लस फाइल, यू रोट द मेन ड्राइवर फाइल. तो वो सारे तीनों फाइल्स में चेंजेस ट्रैक करना और उसमें सारे चेंजेस जो किए गए हैं उसको ट्रैक करना, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप गूगल ड्राइव के हर अलग अलग एक वो बना दें और उसमें जाके ट्रैक करें. तो गिट इज समथिंग जो आपकी पूरी डायरेक्टरी के चेंजेस को कंट्रोल करता है. ये लाइनस टॉरवेल्ड्स ने बनाया था, द सेम गाय बिहाइंड लिनक्स ओएस, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी. लिनक्स ओएस इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना. तो लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने लिनक्स ओएस की डेवलपमेंट के दौरान ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया, गिट बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स गिट बनाया. क्यों बनाया? कि भाई द डेवलपमेंट वाज गेटिंग आउट ऑफ हिज हैंड्स. एक बंदा पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, ऑफ कोर्स इट वाज बाउंड टू हैपन. तो उसने एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया बाय द नेम ऑफ गिट. और इसमें क्या होता था कि एनीवन कैन ही कैन ट्रांसफर हिज कोड ऑफ द कर्नल और दूसरे लोग इसमें आके सारे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं. सो इट वाज इजी टू collaborate on a whole operating system using Git. तो काम कैसे करता है Git? How is it different from Google Drive? How is it different from Notion? How is it different from different version control systems? तो इसमें एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स का. अब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होते हैं, क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको मुझे हेक्टोबर फेस समझाना है एंड हाउ टू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग ऑन ओपन सोर्स.
तो अगर आप किसी का इंटरेस्ट है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप गिट पढ़ लें, गिट क्या होता है, एंड देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज जो मैं आपको एंड ऑफ द स्लाइड्स दिखाऊंगा, जो आप इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में क्या होता है कि एक ऐसा ग्राफ या एक ऐसा अगर दिमाग में आप ग्राफ बना सकें तो जिसमें नोड्स होंगी एंड एजेस हमेशा पीछे अपने पेरेंट को पॉइंट करेंगे। देयर इज़ नो वे कि कोई साइकिल बन सके, राइट, और देयर इज़ नो वे कि कोई मिस डायरेक्शन हो जाए कि किसी चाइल्ड को किसी चेंज को ये नहीं पता कि वो किस चेंज से डिराइव हुआ है। तो मैं आपको ये इन डिटेल इंटरेक्टिव सेशन में समझा दूंगा कि डेक कैसे काम कर रहा है, राइट। तो सारे चेंजेस रिपोजिटरी में एक डायरेक्टरी में, अब एक मैं नॉमेनक्लेचर लिख के आता हूँ रिपोजिटरी के नाम से या रिपो इन शॉर्ट। तो एक डायरेक्टरी को रिपो क्या कहा जाता है गिट में? जब एक डायरेक्टरी में आप गिट इंजेक्ट करते हैं या गिट से बोलते हैं कि यार आप वर्जन कंट्रोल करें इस पूरी डायरेक्टरी को, देन इट बिकम्स ए रिपोजिटरी, ठीक है, या रिपो। तो सारे चेंजेस एक रिपो में यूजिंग स्नैपशॉट्स को जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए थे कि एक पिक्चर, एक मिरर इमेज ऑफ योर करंट वर्जन, उसको कमिट्स बोलते हैं। तो सारे चेंजेस जो डायरेक्टरी में आपके हो रहे हैं यूजिंग स्नैपशॉट्स आप ट्रैक कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेजिंग एरिया का, टू कंट्रोल व्हाट द चेंजेस आर एंड एडिशनल मेटाडेटा। गिट इंटरेक्टिव सेशन में मैं आपको दिखा दूंगा कि स्टेजिंग एरिया क्या होती है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर करंट रिपोजिटरी। तो फर्दर मोर आप आइसोलेटेड सोर्स कोड ब्रांचेस भी बना सकते हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ कोड कि भाई इफ़ आई वांट द करंट वर्जन वर्किंग वर्जन है और मेरे दोस्त बोल रहा है कि आई कैन इम्प्लीमेंट दिस फीचर और मैं बोलता हूँ कि आई कैन इम्प्लीमेंट दिस फीचर, जो मैंने 2 मॉड्यूल्स की बात करी थी ऊपर। तो आई कैन क्रिएट अ ब्रांच, वो ब्रांच में आइसोलेटेड ब्रांच में काम करेगा और साइमल्टेनियसली मैं भी अपनी आइसोलेटेड ब्रांच में काम करूंगा एंड वी कैन एट द लेटर डेट मर्ज दोस 2 कोड्स ताकि एक सिंगल रिपोजिटरी बन जाए। So before we start working with the Git interface, I hope everyone has installed Git, right? अगर किसी के पास नहीं है तो I would suggest कि आप वीडियो को फिर से देखें with Git installed और इसको ज़्यादा इंटरेक्टिवली उसको समझ सकें कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो we'll get started now. अच्छा, कुछ कमांड्स होती हैं गिट इंटरफेस की। द बेसिक्स आर इनिट, स्टेटस लॉग, स्टेजिंग एरिया की कुछ कमांड्स होती हैं एंड देयर आर सम कमांड्स विद ब्रांचेस। तो स्टार्ट करते हैं उसको एक्सप्लेन करना कि इनिट, स्टेटस लॉग, ये सारी कमांड्स क्या करती हैं, हाउ वी गेट स्टार्टेड विद गिट। सबसे पहले आप अपने पास टर्मिनल खोल लें, विच आई होप अगेन आई होप कि आपने जो गिट वगैरह अपने पास इंस्टॉल रखा होगा। To verify कि it installed है, you can just type this command git version और आपके पास अगर response आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास installed है। Okay, moving on. तो कुछ basic commands होती हैं to get started with git। सबसे पहले git help होता है which I think is really enormously helpful। आप git help करके आप सारी जो नॉर्मल कमांड्स होती हैं, आप सपोज करें इस इवेंट के बाद होपफुली आई विल ट्राई टू गो थ्रू ऑल द कमांड्स, लेकिन जिसको मैं नहीं ओवर गो कर पा रहा या जिसको मैं ओवर गो कर पा रहा हूँ आप भूल जाते हैं, तो यू कैन जस्ट डू गेट हेल्प और आपको बता देगा कि कौन सी कमांड क्या करती है। फर्दर मोर गेट हेल्प ऐड भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आप सिर्फ एक कमांड का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। तो सारे जो भी उसमें है, जो भी चीज़ें ये करता है एंड ऑल द पॉसिबल पैरामीटर्स टू द कमांड, वो सारी आप देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद गिट। तो एक मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ सिंपल सी, and macdr get demo, ठीक है, मैं cd हो गया। Now to get started with git, अब जैसे आप देख सकते हैं this is an empty repository। मैं इसको अगर visual code I'll try to explain all the commands that I do in visual code as well, ताकि जो लोग थोड़ा टर्मिनल से डरते हैं they can get an easy experience of git as well। तो I hope it's good। तो एज यू मैं सी कि करंटली जो हमारे पास रिपोजिटरी है या डायरेक्टरी है वो एम्प्टी है, अभी तक रिपोजिटरी नहीं है, दिस इज जस्ट डायरेक्टरी जो एम्प्टी है। नाउ टू इनिशियलाइज द रिपोजिटरी विद गिट या एक गिट इंजेक्ट करना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंजेक्ट करना, व्हाट यू डू इज गिट init एंड यू विल गेट द आउटपुट इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन फलाना फलाना डायरेक्टरी। तो अब हाउ डू यू वेरीफाई कि आपके पास एक गिट की रिपोजिटरी बन गई है?
you'll need to ignore this क्योंकि I am using Z shell, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बता देता है, बट इन नॉर्मल विंडोज सिस्टम्स ये चीज़ें नहीं होती। तो आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं जस्ट इग्नोर देम, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह आए तो साइमल्टेनियसली आप चैट में पूछते जाएं मुझसे, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर लूँगा। तो हाउ टू वेरीफाई कि आपके पास गिट रिपोजिटरी एक डायरेक्टरी में बन गई है। अब अगर आप देखें ls तो स्टिल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बट देयर इज एन हिडन फोल्डर नाउ जो आप ls-a से देख सकते हैं, दैट इज .git। अब .git क्या है? .git is a directory, is a folder that Git uses to track all the changes, और जो भी changes वगैरह हो रहे हैं, जो भी references वगैरह हो रहे हैं, वो सारे verify करता है। तो अगर आप .git में cd करके ls-a करेंगे तो you can see all the different folders, that is branches, hooks, info, objects, reference, that is out of the scope of this presentation की ये चीज़ें क्या होती हैं। Okay, I think there is a question जो मैं पहले आंसर करता हूँ before we get started. मोहम्मद अली इरफान पूछ रहे हैं कि is it git bash you are using as command prompt? नहीं अली, you can definitely use git bash, but I am right now using Tile Linux. This is a Linux operating system. मैं Ubuntu use कर रहा हूँ right now. तो मेरे पास एक this is another terminal Tilix, right? ये टाइल्स वगैरह अच्छी बना देता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ उसको यूज़ करना। फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियसली मैं दो वो बना सकता हूँ। ओके, another question, what happens if I run in a repo in which I have already initialized git program? गुड क्वेश्चन तला। अब अगर आप करके देखते हैं ये गुड क्वेश्चन कि git init में अगर फिर से लिखता हूँ एक रिपोजिटरी जिसमें पहले से git initialized है, तो री-इनिशलाइज हो जाता है। री-इनिशलाइज्ड एग्जिस्टिंग git रिपोजिटरी, अब इसमें सारे चेंजेस जो आपके हो थे they are overwritten, so please use it with caution, try not to do it, ठीक है। git init के बाद भूल जाएं कि git init मैंने किया था और फिर से करना भी है, तो don't do it, ठीक है। अब let's get started। git help, git init मैंने बता दिया, एक रिपोजिटरी आपके पास बन गई, but since there is nothing in the repository, आप पता नहीं कर सकते कि how do you go about making snapshots or making comments of those changes। सबसे पहले एक कमांड होती है git status। अच्छा, git status कुछ चीज़ें बताती है कि आप करंटली कौन सी ब्रांच में, मैं ब्रांचेस आगे जाके होपफुली एक्सप्लेन करूँगा, और आपको ये भी बताती है कि कमिट्स कुछ भी नहीं है, मतलब करंटली आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किए और चेंजेस किए तो आपने स्नैपशॉट्स नहीं लिए, ठीक है। और फर्दर मोर ये भी बताता है कि नथिंग टू कमिट, तो मतलब ना आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है, इसका मतलब है ना आपने चेंजेस किए हैं, ना आपने चेंजेस कमिट किए हैं, मतलब स्नैपशॉट लिया है, और आप करंटली अब ब्रांच मास्टर में। तो होपफुली आई हैव एक्सप्लेन वेल कि git स्टेटस क्या करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैंने रिपोजिटरी बनाई है, लेट्स मेक txt फाइल। तो न्यू फाइल आप VS कोड से यहाँ से बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टच test.txt, जो आपको ज़्यादा प्रेफर लगेगा वो आप कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिस फाइल, राइट, और इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, हेलो फ्रॉम हिट, ठीक है। तो मैंने ये चेंजेस कर दिए, तो अब क्या दिखते हैं कि यू कैन सी कि अगर मैं जब गेट स्टेटस अब करूँगा तो मुझे बोलेगा देयर आर अनट्रैक्ड फाइल्स। तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आपको एक स्टेजिंग एरिया का कॉन्सेप्ट बताया था। तो स्टेजिंग एरिया ये चीज़ होती है कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एवरी रिपोजिटरी, एवरी गिट रिपोजिटरी। राइट नाउ 2 आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, थर्ड इन द लेटर सेशन, आपको नॉट अ लेटर सेशन, मैंने इन अ वाइल आपको बताऊँगा। दो जो स्टेजेस होती हैं, देयर आर रिपोजिटरी, करंटली रिपोजिटरी में जो चीज़ें हैं, राइट, देन देयर इज स्टेजिंग एरिया। अब स्टेजिंग एरिया में वो सारे चेंजेस आते हैं जिनको हम अप्रूव करते हैं कि भाई मैंने बोला कि दीज चेंजेस आर अप्रूव्ड, ठीक है। अब इसको आप कमिट के लिए रेडी कर दें कि भाई जो भी मैंने चेंजेस किए ना, आई अप्रूव दोस चेंजेस। तो मैंने बोला कि हाँ, सिंस आई हैव डन टेस्ट और txt माई सेल्फ, तो मैंने कहा कि यार आप इसको ऐड कर दें। कैसे? तो एक git ऐड की कमांड होती है। व्हाट git ऐड डज इज कि भाई वो स्टेजिंग एरिया में जो भी चेंजेस मैंने किए हैं, अप्रूव चेंजेस, मैं उसको डिफाइन करके, फाइल को डिफाइन करके, ये अप्रूव चेंजेस हैं, आप स्टेजिंग एरिया में उसको डाल दें। तो test.txt में मैंने मतलब test.txt मैंने स्टेजिंग एरिया में डाल दी। तो आप git स्टेटस करके देखते हैं, यू कैन सी कि भाई चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब मुझे अब बता रहा है कि दीज आर द चेंजेस यू हैव अप्रूव्ड, ठीक है, क्यों ग्रीन में आ रहे हैं अभी। तो क्या आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहेंगे? मतलब क्या आप करंटली जो ये चेंजेस आपने किए हैं,
are you okay with them and you want to create a snapshot. Sometimes happens कि भाई मैंने एक फाइल तो प्रोग्राम कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस का एग्जांपल ले लें, होपफुली आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड सी प्लस प्लस पे काम किया होगा थोड़ा ना थोड़ा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू आस्क इन द चैट, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा. तो सी प्लस में क्या होता है, देयर आर 3 फाइल्स, हेडर फाइल, डेफिनेशन फाइल एंड मैन ड्राइवर फाइल. तो हेडर में मैंने सारे क्लास हेडर्स वगैरह डिफाइन कर लिए कि भाई कौन सा फंक्शन क्या करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या रिटर्न करेगा. देयर इज द डेफिनेशन फाइल एंड देन देयर इज द ड्राइवर फाइल. डेफिनेशन में फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, ड्राइवर फाइल में वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करा के यूज़ करते हैं. तो इस चीज़ से अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास यूजुअली क्या होता है, मैंने सबसे पहले हेडर फाइल पे काम करना स्टार्ट कर दिया और मैंने स्टेजिंग एरिया में वो डाल दी, बट आई एम नॉट रेडी टू क्रिएट अ स्नैपशॉट ऑफ इट येट, क्योंकि मैंने अभी 2 चेंजेस और करने हैं. दैट इज़ की डेफिनेशंस फाइल डिफाइन करनी है और ड्राइवर फाइल डिफाइन करनी है. तो सब्जेक्ट सब कुछ रेडी नहीं होता, आई एम नॉट रेडी टू टेक अ स्नैपशॉट. तो अगर आप रेडी हो जाते हैं जब स्नैपशॉट लेंगे जो आई एम राइट नाउ, तो गिट कमिट. दैट इज़ की भाई अब आई एम रेडी फॉर द चेंजेस, ये सारे चेंजेस अप्रूव्ड है मेरे लिए, मैं इसको कमिट करना चाहता हूँ, एक स्नैपशॉट बनाना चाहता हूँ. तो आई राइट द कमांड गिट कमिट और आप एंटर कर दें. अच्छा, एंटर करने के बाद जब आप विंडोज़ में इंस्टॉलेशन करेंगे तो गेट बैश की अगर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, नॉट गेट बैश, गिट की अगर नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप यूजुअली अपना एक कोई एडिटर सेलेक्ट करते हैं. इट इज़ यूजुअली सबलाइम एडिटर फॉर सम, कोई अपना नोटपैड वगैरह इस्तेमाल कर लेता है, या अगर आप उबंटू की बात करें या मैक ओएस की बात करें तो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल पे ही एक एडिटर खुल जाता है जो विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ. तो उस एडिटर में आप अपना मैसेज लिखते हैं जो यहाँ पे भी एक्सप्लेन है, प्लीज़ एंटर द कमिट मैसेज फॉर योर चेंजेस. अच्छा, अब ये चीज़ कमिट मैसेज क्या है, दिस इज़ द वाई ऑफ योर चेंज. तो मैंने VSCS में एक्सप्लेन किए थे कि देयर इज़ वॉट, देयर इज़ हु, देयर इज़ वैन, देयर इज़ वाई. तो वाई गूगल डॉक्स वगैरह में नहीं हो रहे थे, राइट? लेकिन आप ये वाई आप गिट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाउ, कि आप एक्सप्लेन कर दें कि चेंजेस में हुआ क्या था. तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्रिएटेड test.txt फाइल एज सैम्पल. तो अगर कोई बंदा आएगा और वो test.txt देखता है और ये कमेंट देखता है तो उनको पता चल जाएगा कि भाई दीज आर द चेंजेस, राइट, दीज आर द चेंजेस दैट आर अप्रूव्ड, और इसने इस वक्त क्या किया था. अब सारे चेंजेस जो आप करेंगे दे आर सेव्ड इन अ लॉग. तो उस लॉग को एक्सेस करने के लिए आपके पास कमांड होती है गेट लॉग. गिट लॉग को मैं ऑल करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा. खैर ऑल के बगैर भी वही चीज़ आ जाएगी. खैर द पॉइंट बिंग कि आपने जो कमिट किया था क्रिएटेड test.txt फाइल एज सैम्पल, तो ये वो यहाँ पे आ गई, राइट. अब उस कमिट का एक हैश फाइल एक हैश बनता है टू आइडेंटिफाई, एक आइडेंटिफिकेशन बनती है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि ये चेंजेस हुए थे. तो आपने जब एक गिट एक फाइल बनाई test.txt, उसके बाद आपने उसको ऐड किया स्टेजिंग एरिया में, उसके बाद आपने कमिट किया. कमिट करने के बाद आप लॉग में सारे वर्जन्स देख सकते हैं, सारे स्नैपशॉट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए थे. दिस इज सिमिलर टू द वर्जन हिस्ट्री दैट वी सॉ ऑन गिटहब, नॉट गिटहब, गूगल डॉक्स. तो अगर मैं आपको दिखा दूं वो चीज़ तो राइट. सो इफ वी गो टू दिस वर्जन हिस्ट्री, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. ये भी वर्जन हिस्ट्री है एक. तो वो कैसे एक्सेस हुई, गेट लॉग से, राइट. So we have covered git log, we have covered git status, we have covered git add, we have covered git init, git commit. अब आगे चलते हैं. तो एक और चेंज बनाते हैं. With this time we are creating the file with VS Code test2.txt. Another hello from Git. ठीक है, मैंने एक और फाइल ऐड कर दी. तो अगर मैं git status करूँगा अभी, you can see एक untracked फाइल है, ठीक है. अच्छा, मैं अब सेम काम गिट एडिशन ऑफ स्टेजिंग एरिया, गिट कमिट, टेकिंग द स्नैपशॉट, ये सारा काम है VS कोड आपको करके दिखाता हूँ. तो फॉर पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विथ यूजिंग लिनक्स और सॉरी यूजिंग टर्मिनल ऑन अ डेली बेसिस, वो ये चीज़ कर सकते हैं. तो इफ़ वी गो इन दिस, तो VS कोड में, VS कोड इज़ अ कोड एडिटर, आई थिंक कॉमनली काफ़ी लोग यूज़ करते हैं राइट नाउ. तो आप सोर्स कंट्रोल में अगर जाएँ तो आपके पास चेंजेस दिखेंगे कि जो चेंजेस आपने किए हैं. तो अगर आप जैसे ही चेंजेस में जाएंगे तो यू कैन नोटिस कि
द डिफरेंस बिटवीन द चेंज। पहले खाली test2.txt खाली थी चीज थी, कोई भी लाइन नहीं थी उसमें, बट चेंजेस यू मेड वर अनदर हेलो फ्रॉम हेडवर्ड गेट। ठीक है, तो आई अप्रूव दिस चेंजेस, और अप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट गो टू द चेंजेस, और उसके बाद यू कैन सी द प्लस साइन, दैट इज स्टेज चेंजेस। तो मैंने स्टेज कर दिया, अब स्टेजिंग एरिया में वो चीज़ आ गई। आफ्टर एडिंग टू द स्टेजिंग एरिया मैं कुछ भी मैसेज लिख दूँ, एडेड test2.txt। ठीक है, उसके बाद आई कैन अप्रूव दिस चेंजेस, हाउ, गिट कमिट। तो गिट ऐड कैसे, गिट ऐड यहाँ से किया, उसके बाद गिट कमिट, मैसेज लिख दिया यहाँ पे, गिट कमिट, और यहाँ से सिंपली वो कमिट हो गया इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्मिनल। अगर आप गिट स्टेटस अभी करें तो आपके पास बोल देगा कि यार ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, सारे कमिट सही हैं। गिट लॉग अप करेंगे तो यू कैन सी देयर इज एन अनदर चेंज जो अभी मैंने कमिट किया, नॉट यूजिंग द टर्मिनल बट यूजिंग द वीएस कोड, वो भी यहाँ पे आ गया। दीज आर ऑल द चेंजेस दैट वी हैव मेड राइट नाउ। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ से अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, मैं अभी चैट देख के आपको आंसर दे देता हूँ। और से यूज ऑफ दैट हैश लाइन। अच्छा उमेर, हैश लाइन का क्या फ़ायदा है कि अगर गिट लॉग में अगर आप आ जाते हैं तो देयर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई कि भाई दो चेंजेस हुए हैं, दो चेंजेस हुए हैं, देयर इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई दो चेंजेस हुए हैं, लेकिन देयर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल चेंज। तो हैश एक आपका जो आपने करंट चेंजेस किए हैं अलॉन्ग विद द टाइमलाइन और कुछ सीड डेटा यूज़ करके एक हैश बनाता है, और हैश की हमेशा साइज सेम ही होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हैश नहीं देख सकते, लाजमी है कि आप पूरा हैश याद नहीं कर सकते, तो यू कैन जस्ट refer to the commits using the first 4 or first 5 digits of the hash file, the hash message, or the hash ID। तो उसको आप refer करेंगे तो आप you can access that in detail all the changes that have been made in that particular commit। कैसे? अच्छा, there is a command called git diff। अच्छा, git diff कैसे काम करती है? तो सपोज करें मैं स्टेज 2 पे टेस्ट 1 में कुछ चेंजेस करता हूँ, बैक टू द फाइल्स कुछ चेंजेस करता हूँ, सम चेंजेस। ठीक है, मैंने जैसे ही सेव किया तो यू कैन नोटिस कि यहाँ पे जैसे सोर्स कंट्रोल ने मुझे बता दिया कि देयर आर चेंज, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ गिट स्टेटस, सिमिलरली यहाँ पे मुझे बोलेगा कि देयर आर सम चेंजेस, बट आई वांट टू आइडेंटिफाई कि ये चेंजेस हैं क्या। ठीक है, तो हाउ डू आई रेफर दैट, यू कैन यूज गिट डिफ s.txt। तो आपको ये सारे चेंजेस बता देगा कि फॉर एग्जांपल जैसे हेलो फ्रॉम हेलो विद हेडवर्ड गेट। अच्छा, इसको क्यों बता रहे हैं कि ये माइनस है इवन दो इट्स नॉट रिमूव्ड, दैट इज कि हमने एक न्यू लाइन एंटर करी। तो यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है नो न्यू लाइन एट एंड ऑफ लाइन, तो उसने बताया कि ये चेंजेस थे, पहले ये था, नाउ द न्यू स्टेट ऑफ द फाइल इज की हेलो फ्रॉम हेडवर्ड गेट, और सम चेंजेस को चेंजेस एक लाइन अपेंड कर दिया दैट रिफर्स टू सम चेंजेस। ठीक है, तो सिंस आई अप्रूव ऑफ दीज चेंजेस, तो मैं अब इसको ऐड कर दूंगा कि भाई हाँ आई अप्रूव ऑल दोज चेंजेस, गिट स्टेटस, अब मेरे पास वो अपडेट हो जाएगा एंड आई कैन जस्ट कमिट ऐड सम चेंजेस टू टेस्ट। अच्छा, वन थिंग आई मिस्ड हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, /m क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो गिट कमिट अगर आप करते हैं तो यू कैन नोटिस कि एक एडिटर खुल जाता है। ठीक है, बट दैट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर सम पीपल कि भाई एडिटर खोले, एडिटर के बाद मैं एक लाइन खोल लिखूँ और उसके बाद वापस आ जाऊँ। तो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज कि गिट कमिट /m, एक आर्ग्यूमेंट देते हैं /m के नाम से, और उसमें आप मैसेज वहीं पे लिख दें, तो हाथ के हाथ आपका कमिट भी हो जाएगा और मैसेज भी चला जाएगा। तो इनिशियल कमिट इसका मुझे नहीं लिखना ऑफ कोर्स, जैसे ऐड सम चेंजेस टू test.txt। ठीक है, चेंजेस हो गए, गिट स्टेटस, और गिट लॉग करेंगे तो आपके पास सारे वो चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट मैंने एक रेस किया था कि गिट यूजेस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड DAGs, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स। तो अब ग्राफ अगर देखना चाहें तो ग्राफ्स आर यूजुअली नोड दे आर कनेक्टेड विद डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड एजेस। तो अगर गिट लॉग ऑल सारे चेंजेस मुझे दिखाओ इन अ ग्राफ, डबल डैश ग्राफ, डबल डैश डेकोरेट, डेकोरेट इज जस्ट फॉर कलरिंग एंड स्टफ। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, ये सारे मेरे DAG बन रहा है। कैसे कि यू कैन नोटिस अ सिंगल कमिट, एक फर्स्ट चेंज, उसके बाद एक दूसरा चेंज एंड तीसरा चेंज। यू कैन नोटिस हाउ ईच चेंज रिप्रेजेंट्स इट्स प्रीवियस पेरेंट, या जो जहाँ से वहाँ वो आया है। ठीक है, तो दिस इज अ DAG
क्योंकि कोई भी साइकिल्स नहीं बन रही, ठीक है, और डायरेक्टेड है. यू कैन नॉट सी द एरो हेड्स, बट डायरेक्टेड इस हिसाब से कि इट ऑलवेज गोज डाउन, ठीक है. और एक ग्राफ पे ऑफ कोर्स, क्योंकि नोड्स हैं, दीज आर कमिट्स और नोड्स, एंड दीज आर एजेस जो उसको कनेक्ट कर रही हैं. ओके, कोई क्वेश्चन वगैरह है? मैं देख लेता हूँ. What kind of hash it uses? अच्छा उमेर, the hash is SHA-1. अगर आप को इंटरेस्टेड हो, आप फर्दर मोर कैन दैट हैश सपोर्ट डिक्रिप्शन और समथिंग. अच्छा, दिस इज नॉट द हैश ऑफ अ डिक्रिप्शन और काइंड ऑफ जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है कि आप इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे हैं. दिस इज नॉट फॉर डिक्रिप्शन पर्पसेस. दिस इज फॉर एक मैसेज डाइजेस्ट बनाना, कि भाई सारे चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल डाइजेस्ट हो, राइट? तो ऑफ कोर्स SHA-1 की बात करते हैं तो इट्स नॉट दैट इजी टू डिक्रिप्ट, राइट? और अगर आप डिक्रिप्शन दिमाग में चलिए, बट दिस इज जस्ट एन आईडी टू आइडेंटिफाई द कमिट्स एंड रेफर देम इन द फ्यूचर. Hopefully, this is clear so far. अगर कोई क्वेश्चन है तो please do ask before I move forward. Anyone? Get log से, get add से, get init, staging area, get diff. Any problems so far before we move ahead? Okay. I hope it's clear to all, right? चलो तो आगे चलते हैं. अब चीज़ आती है कि भाई कोलैबोरेशन कैसे कर सकता हूँ मैं. तो मैंने कुछ बात करी थी कि आइसोलेटेड ब्रांचेस आप बना सकते हैं अपनी कोड की, ठीक है. तो बिफोर वी डू दैट, मैं एक सिंपल पाइथन की एक फाइल बनाता हूँ अपने उसमें. तो टू डू सो आई जस्ट कॉल इट script.py, और इसमें एक फंक्शन डिफाइन करूँगा मैं, या फंक्शन नहीं डिफाइन करते, नॉर्मली एक चीज़ लिखते हैं कि प्रिंट हेलो, ठीक है. एक सिंपल पाइथन की फाइल है. फॉर दोज हु डू नॉट नो, आई हैव नॉट वर्कड विद पाइथन, इट्स फाइन, ठीक है. जस्ट गो हेड, आप सिंपल सूडो कोड है, आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है. तो एक सिंपल script.py एक फाइल है पाइथन की जो आपको प्रिंट करके दिखाएगी हेलो. तो लेट्स कॉल इट इन इट, ओह सॉरी, नॉट इन टर्मिनल. तो script.py मैं रन करूँगा तो मेरे पास हेलो प्रिंट आ जाएगा, ठीक है. अब git status करूँगा, सिंस आई हैव मेड चेंजेस इन द डायरेक्टरी, तो आपके पास बोल देगा कि यार एक script.py का चेंज है, डू यू अप्रूव इट. तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार git add script.py कि आई अप्रूव ऑफ दिस चेंजेस, और इसको मैं कमेंट कर दूंगा create python script, ठीक है. अच्छा, अब राइट नाउ मेरे पास 4 चेंजेस हो गए, git log all stuff. तो सारे चेंजेस मेरे पास आ रहे हैं, एंड यू कैन नोटिस द लेटेस्ट चेंज, दैट इज पाइथन स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई थी. अच्छा, अब मुझे पाइथन चेंजेस में कुछ चेंजेस करने हैं, बट द थिंग इज़ कि भाई मुझे साइमल्टेनियसली 2 चेंजेस करें. तो अगर आप कोलैबोरेशन का आप दिमाग में लेके आएँ, तो मुझे दोस्त बोलता है कि यार मैं एक अलग फीचर बनाता हूँ, और मुझे दूसरा दोस्त बोलता है कि मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं एक अपना फीचर कोई बनाता हूँ, राइट. एक फीचर ये है कि मुझे यूजिंग एनी इनपुट, जो भी यूज़र इनपुट देगा फ्रॉम द टर्मिनल, उसको स्क्वायर करके बता दूंगा. और दूसरा चेंज ये है कि जो भी नंबर उसने इनपुट किया है, ठीक है, उसका मैं बता दूंगा इज इट इवन और नॉट, ठीक है. ये 2 फीचर्स हैं. तो अब यूजली आइडियल केस क्या होगा कि साइमल्टेनियसली क्यों ना काम करें इस चीज़ पे, ठीक है. तो साइमल्टेनियसली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग 2 टर्मिनल्स, क्योंकि मेरे पास टाइलेक्स है, तो मैं तो वो बना देता हूँ, ठीक है. एंड आई जस्ट cd into run/dsu/network, ठीक है. अब मेरे पास साइमल्टेनियसली 2 टर्मिनल्स खुल गए. कैसे कि एक टाइल नेक्स्ट में मैंने अपने वाइस वो खोल दिया. दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सेशन की कैसे किया मैंने, बट यू कैन ऑल्सो डू दिस, ज़्यादा बेहतर है. KCD करण. अब ब्रांचेस कैसे बनती हैं, एंड व्हाट आर ब्रांचेस. तो ब्रांचेस आर आइसोलेटेड वर्जन्स और आइसोलेटेड फॉर्क्स, आइसोलेटेड क्लोन्स ऑफ योर करंट रिपोजिटरी. तो मेरे पास करंट रिपोजिटरी क्या है कि मैंने कुछ चेंजेस किए और पाइथन स्क्रिप्ट बना दी, 4 चेंजेस, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ ही आ जाएगी, क्योंकि आई एम जस्ट सीडेड इनटू इट, और यू कैन सी ऑल द चेंजेस, ठीक है. अब मैं एक ब्रांच बनाना चाहता हूँ, ठीक है. एक कमांड होती है git branch.
व्हाट इज गिट ब्रांच? गिट ब्रांच मुझे अगर नॉर्मली लिखेंगे तो आपको बता देगी करंटली क्या ब्रांचेस हैं। अब मास्टर ब्रांच इज द डिफॉल्ट ब्रांच यू गेट विद गिट इनिट। जब गिट इनिट करेंगे तो करंटली जो वर्जन होगा आपकी रिपोजिटरी का दैट इज कॉल्ड द मास्टर। ठीक है, अब मास्टर्स को फर्दर मुझे एक अलग ब्रांच बनानी है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक स्क्वायर वाली ब्रांच होगी, तो कोई फीचर होगा जो स्क्वायर करेगा पाइथन को। ठीक है, मतलब कोई भी इनपुट देके उसको स्क्वायर कर देगा। एक दूसरा फंक्शन ये है कि जो इवन और ऑड बना देगा। तो एक मैं गिट ब्रांच बनाता हूँ, राइट, जिसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, अब मैं गिट ब्रांच करूंगा तो यू कैन नोटिस कि मेरे पास दो ब्रांचेस आ रही हैं, गिट मास्टर, गिट स्क्वायर। मुझे यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है, दैट मीन्स कि मैं करंटली मास्टर की ब्रांच में हूँ, बट आई वांट टू शिफ्ट ओवर टू स्क्वायर ब्रांच, ताकि ये मास्टर में कुछ भी चेंजेस ना हो, बट आई वांट टू क्रिएट चेंजेस इन द स्क्वायर ब्रांच। तो गिट चेकआउट स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर ब्रांच में आ गया। सिमिलरली यही काम मैं यहाँ पे भी करता हूँ। तो गिट ब्रांच इवन, या इज इवन बोल देते हैं कि कोई नंबर बता देगा इवन नंबर है कि नहीं है। गिट ब्रांच और गिट चेकआउट इज इवन, राइट। अब यहाँ पे इस टर्मिनल में मैं इज इवन पे हूँ और इस टर्मिनल में स्क्वायर पे हूँ। गिट ब्रांच करूँगा तो यू कैन नोटिस कि मेरे पास जो मैंने यहाँ पे इज इवन की ब्रांच बनाई थी वो भी यहाँ पे आ रही है, बट आई एम चेकड आउट टू स्क्वायर, नॉट द गिट इनिट, गिट स्टेटस। ठीक है, मैं स्क्वायर की ब्रांच में हूँ। तो अब स्क्वायर की ब्रांच में चेंजेस करते हैं। यू कैन ऑल्सो नोटिस फ्रॉम हेयर कि मैं स्क्वायर की ब्रांच में हूँ। VS कोड में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मास्टर पे आ गया एंड आई कम बैक टू स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर में मैंने क्या बोला था कि यूजिंग यूज़र इनपुट, कुछ भी यूज़र इनपुट देगा, ठीक है, और वो उसको स्क्वायर कर देगा। कैसे? कि भाई मैंने सबसे पहले इम्पोर्ट सिस किया। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ हाउ आई एम प्रोग्रामिंग दिस, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, दिस सेशन। तो उसको कैसे करते हैं कि भाई नंबर इज इक्वल टू सिस डॉट argv1 और प्रिंट नंबर इनटू नंबर। नंबर का स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई नंबर होता है और उसको वो प्रिंट कर देगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। python script dot py 5 again multiply sequence. Okay, we have to convert it into the int and you can notice कि मैंने 5 उसको दिया using the terminal arguments और मुझे वो 25 रिटर्न कर देगा। Similarly 24 रिटर्न करूँगा तो 577, 2 रिटर्न करूँगा 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब दिस इज चेंज आई मेड इन स्क्वायर ब्रांच। ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रांच का स्टेटस देखें तो ऑन ब्रांच स्क्वायर, और जो चेंजेस मैंने किए हैं वो कमिटेड नहीं है, वो मतलब स्टेजिंग एरिया में नहीं गए हुए। तो गेट डिफ डॉट पाई देखते हैं क्या चेंजेस किए थे मैंने। सिमिलरली यही काम अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ तो मुझे बताएगा कि पहले प्रिंट हेलो था, उसके बाद आपने आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू गाइस, आई होप इट्स विजिबल नाउ, कि मैंने प्रिंट हेलो एक लाइन थी, उसके बाद वी चेंज मेड सम चेंजेस और इम्पोर्ट सिस और नंबर इज इक्वल टू इंट सिस आर्ग्यू और प्रिंट नंबर इनटू नंबर। तो ये सारे चेंजेस किए, आई अप्रूव ऑफ दीज चेंजेस। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो क्रिएट स्क्वायर फीचर, ठीक है, या इम्प्लीमेंट स्क्वायर फीचर। मैंने इस चीज़ को कमेंट कर दिया। यू कैन नोटिस गेट लॉग ग्राफ के एक स्क्वायर का फीचर आ गया। कहाँ पे? स्क्वायर ब्रांच में। यू कैन नोटिस कि हाउ मास्टर इज स्टिल ऑन क्रिएट पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, मास्टर इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, बट द स्क्वायर इज पॉइंटिंग टू द न्यू फीचर दैट इज की इम्प्लीमेंट स्क्वायर फीचर। और इस इवेंट में क्योंकि हमने अभी तक चेंजेस नहीं किए, वो भी अभी तक मास्टर के साथ ही है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। अब इस इवेंट का फीचर इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे? कि पहले चेकआउट करूंगा मैं उस पर इस इवेंट पे। ठीक है, अब जैसे मैंने चेकआउट किया यू कैन नोटिस पहले वर्जन पे आ गई, राइट। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना था कि जो भी नंबर है उसको बता देगा कि इवन है कि नहीं है। तो इम्पोर्ट सिस अगेन नंबर इज इक्वल टू सिस डॉट argv1, जो भी नंबर है उसको मैंने पहले इंटीजर बनाया, उसको आर्गुमेंट लिया और प्रिंट इज इवन पहले बना देते हैं एक इज इक्वल टू नंबर 2 इफ नंबर मोड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 2 से डिविजिबल है तो ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, तो प्रिंट कर देते हैं इज इवन।
Hopefully I'm not doing any mistakes in the program. Python script.py, sorry, script.py 2 5 नीचे क्यों आ रहा है ये? ओके 5, ठीक है। 5 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, प्राइम नंबर नहीं, सॉरी इवन नंबर 2 है। सिमिलरली 4 इवन है, ओके इट इज आल्सो इवन। तो ये प्रिंट कर रहा है कि भाई इवन नंबर है कि नहीं है। अच्छा, अब मुझे मसला ये आता है कि मैंने जो दोनों चेंजेस तो कर दिए, तो गिट स्टेटस करते हैं अगर, तो मेरे पास सारे चेंजेस तो आ रहे हैं, राइट। तो अगर गिट डिफ करूँ script.py, तो यू कैन नोटिस ऑल द चेंजेस दैट आई हैव मेड इन दिस ब्रांच। सिर्फ उसके इस इवेंट की ब्रांच में चेंजेस किए हैं, तो मुझे उसको ऐड करना है script.py। चेंजेस ऐड हो गए, गिट स्टेटस, ठीक है, गिट कमिट। अच्छा, यू कैन नोटिस कि मैं साथ साथ टर्मिनल भी यूज़ कर रहा हूँ, VS कोड भी एक्सचेंज करके दोनों यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है इन ईदर केसेस मुझे बता दें, तो मैं उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गिट कमिट ऐड इवन फीचर ऐड हो गया, गिट स्टेटस करेंगे आप और गिट लॉग करेंगे, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कैसे स्क्वायर इज अ कमिट बिहाइंड इम्प्लीमेंट स्क्वायर फीचर। अच्छा, कैसे? अब मैंने मास्टर से मैंने एक ब्रांच ली जिसका नाम था स्क्वायर, ठीक है, और मास्टर से मैंने एक और ब्रांच ली जिसका नाम था इवन। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे कैसे डिविएट हो रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक कमिट करी और यहाँ पे एक अलग कमिट करी, तो ये दोनों सेपरेटली आइसोलेटेड काम कर रहे हैं एक दूसरे से। स्क्वायर इज नॉट मैसिंग विद इज इवन और इज इवन इज नॉट मैसिंग विद स्क्वायर। अब मुझे दोनों को मर्ज करना है, मुझे स्क्रिप्ट में दोनों फीचर्स चाहिए, तो ट्राई करते हैं। तो इसकी कमांड होती है कॉल्ड गिट मर्ज, ठीक है। मुझे पहले चेकआउट करूंगा, गिट चेकआउट मास्टर पे वापस आ गया एंड आई कैन नोटिस देयर आर 2 ब्रांचेस नाउ, इज इवन और स्क्वायर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि पहले स्क्वायर को मर्ज कर दूँ अपने मास्टर के साथ, क्योंकि मुझे स्क्वायर का फीचर चाहिए। तो गिट मर्ज स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे ये ऑटोमेटिकली मर्ज करके दे देगा। और जो भी स्क्वायर में चेंजेस थे वो सारे मर्ज उसके साथ मास्टर के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो आप अगर अभी देखें तो आप यू नोटिस कि मास्टर और स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट करें, दैट इज इम्प्लीमेंट स्क्वायर फीचर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मास्टर पे जाएं, जो कि अभी हैं आप, तो यू कैन नोटिस कि मास्टर में स्क्वायर का फीचर आ रहा है, स्क्वायर वाला कोड आ रहा है। बट नाउ आई वांट टू ऐड द इज इवन फीचर एज वेल। तो वो कैसे करूँगा? गिट मर्ज इज इवन। ओह, इसने बोला ऑटो मर्जिंग स्क्रिप्ट डॉट पाई कॉन्फ्लिक्ट। अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि अगर आपने दो फीचर्स दो ब्रांचेस में सेम कोड को एडिट किया है, राइट, और आपको इसको मर्ज करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि गिट तो नहीं समझ सकता कि भाई कौन सी लाइन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो व्हाट गिट डज इज कि आपको एक उस फाइल को एडिट करके आपको दे देता है, ताकि आप प्रोग्रामर खुद इस चीज़ को डिफाइन कर सके कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। अब मुझे ये बोल रहा है कि देयर आर 2 चेंजेस, दैट इज कि एक प्रिंट नंबर इनटू नंबर कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो सेम है दोनों ब्रांचेस में, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि यार ये दूसरा चेंज है जो इनकमिंग चेंज है, दैट इज कि इज इवन के साथ मर्ज कर रहे हो, तो ये लाइन इन दोनों लाइन्स के साथ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो अब इट इज़ अप टू द डेवलपर कि वो कौन सा फीचर रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तो रख नहीं सकता राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन ऑफ करंट स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। तो इट इज़ अप टू मी मैं कौन सा रखना चाहता हूँ। समटाइम्स इट्स यूजफुल कि यार, क्योंकि मुझे सिर्फ मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ इवन वाली चाहिए ब्रांच, तो मैं सारा कोड हटा दूंगा दैट इज रिलेवेंट, और मैं सिर्फ इवन वाला कोड रख दूंगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली अगर मुझे सिर्फ स्क्वायर वाला रखना होता तो मैं क्या करूँगा, इवन का सारा कोड जो इनकमिंग चेंज था मैंने उसको सारा हटा दिया, ठीक है। यू कैन जस्ट डू दिस, और ये भी हटा दिया। तो यू कैन नोटिस कि मैंने वापस उसी चीज़ पे आ गया जो उसमें था, स्क्वायर वाली ब्रांच में था, ठीक है। बट आई वांट टू कीप द इवन वाली ब्रांच जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजेस। अब ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू, आप ये भी कर सकते हैं कि फंक्शन बना के दोनों चीज़ें रख दें, दैट इज अप टू यू, अगेन अप टू द प्रोग्रामर वो क्या करना चाहता है। तो नाउ द कन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा जो मसला करेगा। तो मैं क्या करूँगा, गेट एड स्क्रिप्ट डॉट पाई, जो मैंने करंट चेंजेस किए, मतलब जो आपने एडिट करके मुझे फाइल दी थी कन्फ्लिक्ट के दौरान, मैंने कन्फ्लिक्ट हल कर दिए। अब उसको जो नया अपडेटेड चीज़ है उसको ऐड कर दो, और गेट मर्ज कंटिन्यू।
ठीक है। और सिंस आई डिड नॉट एड स्लैश एम, तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है तो मैसेज क्या है, तो आई जस्ट टाइप इन यस दिस इज माई मैसेज, यस एंड क्लोज। तो इस इवन ब्रांच मर्ज हो गई। तो आप गिट लॉग देखते हैं जरा स्टेटस क्या है। तो यहाँ से आते हैं कि मैंने एक स्क्रिप्ट, पाइथन की स्क्रिप्ट बनाई, उसके बाद मैंने यहाँ से एक ब्रांच ली, उस ब्रांच का नाम था स्क्वायर। ठीक है, इफ़ यू कैन नोटिस दिस, अगर मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है, तो मैंने एक ब्रांच ली, इसका नाम था स्क्वायर। ठीक है, और उस स्क्वायर को मैंने फर्दर मोर स्क्वायर के साथ साथ मैंने एक और ब्रांच ली जिसका नाम था इवन, और इवन और स्क्वायर को मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है राइट एयर, और दोनों को मर्ज करने के बाद वो मास्टर में चलेंगे, तीनों की तीनों ब्रांच। अब द मास्टर इज इवन एंड स्क्वायर, ऑल थ्री ब्रांचेस आर मर्ज्ड। ठीक है, ये इस तरीके से आप कोड कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि भाई मैंने ब्रांचेस बना के किसी लोग को, दोस्त को दे दी और वो इस ब्रांच पे काम कर रहे हैं। बट अब back to the slides. Hopefully I am able to teach you all the different stuff that we went over today. और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, तो कॉन्सेप्ट में भी आप, मेरे पास गिट भी समझ आ गया। तो व्हाट इज गिट? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। गिट समझ आ गया, बट अब मसला आता है, तो ये तो सारा लोकल है, जो भी मैंने काम किया है राइट नाउ, सारी चीज़ लोकल ही है ना। देयर इज़ नो वे कि मैं अभी कंट्रीब्यूट तो कर सकता हूँ, कोलैबोरेट कैसे करूँगा? दोस्त को कैसे पता कि मेरे पास एक लोकली मेरे कंप्यूटर में एक डेस्कटॉप में एक गिट की रिपोजिटरी बनी हुई है, उस गिट की रिपोजिटरी में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, मैं उसको कैसे शेयर कर सकता हूँ विदाउट अगेन इन्वॉल्विंग अ गूगल ड्राइव और यूएसबीज, यूएसबी नॉट यूएसबीज। ठीक है, तो लोकल है ये सारा काम। तो यहाँ पे आता है आपका गिटहब। व्हाट गिटहब डज इज एन ऑनलाइन होस्टिंग ऑफ गिट रिपोजिटरीज। जो भी आप करंट लोकली गिट रिपोजिटरीज आप रख रहे हैं अपने पास, आप उसको सब ऑनलाइन होस्ट करने के लिए गिटहब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि गिटहब को गिटहब से कैसे कनेक्ट करते हैं यूजिंग रिमोट्स। आप दोनों में चेंजेस वगैरह कैसे सिंक कर सकते हैं यूजिंग गिटहब ब्रांचेस। ठीक है, और करंटली जो गिटहब पे रिपोजिटरी बनी हुई है उस पर कैसे काम कर सकते हैं और उसमें कैसे कंट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हैं। फर्दर मोर एडिंग चेंजेस टू अदर कोड बेसिस, फॉर कॉपी रिक्वेस्ट वगैरह के साथ कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद गिट हब। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि दिस इज गिट हब। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी अकाउंट बना लें। दिस इज़ माई प्रोफाइल। अच्छा, अब प्रोफाइल सबसे पहले, अब मुझे जो करंट रिपोजिटरी उसको कनेक्ट करना है गिटहब के साथ, तो मैं एक नई रिपोजिटरी बनाऊंगा गिटहब पे। ठीक है, डू सो आप जस्ट यहाँ पे जाते हैं, क्लिक द न्यू, और रिपोजिटरी का नाम कुछ भी रख दें, दैट इज़ कि भाई हिट विद गिटहब। ठीक है, ऑनलाइन hosting of my local git repository. अच्छा, readme files क्या होते हैं? I'll try to go over to them in a bit. Git ignores क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और licenses are the out of scope of this video. I would suggest कि license आप खुद देख लें। और पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरी में ये फ़र्क होता है कि पब्लिक रिपोजिटरीज, जैसे अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, तो जो रिपोजिटरीज आप मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, दीज आर ऑल पब्लिक रिपोजिटरीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फीडबैक बॉट में चलाता हूँ, तो अगर आप, क्योंकि आप सारा कोड देख सकते हैं मेरा, देयरफॉर इट्स ओपन सोर्स एंड देयरफॉर इट्स पब्लिक। अच्छा, ओपन सोर्स का ये मतलब नहीं है कि आपकी रिपोजिटरी सिर्फ पब्लिक होनी चाहिए। ओपन सोर्स का मतलब ये भी कि प्राइवेट भी हो सकती है और उसको आप इन ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग फॉर पब्लिक ताकि आप भी एक्सेस कर सकें इसको इन लेटर डेट। तो रिपोजिटरी बन गई। अच्छा, अब मुझे इस रिपोजिटरी को अपनी लोकल ब्रांच के साथ कनेक्ट करना है, तो मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं। क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, नहीं मेरी रिपोजिटरी पहले ही लोकली बनी हुई है, या पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन। हाँ, ये मुझे काम करना है क्योंकि आई वांट टू पुश माय करंट रिपोजिटरी टू गिटहब। टू डू सो मुझे कुछ कमांड्स दी हुई हैं इसने, गिट रिमोट, ऐड ऑरिजिन, गिट ब्रांच, गिट पुश। अच्छा, तो सारी कमांड्स को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे गिट ब्रांच थी, मुझे बताती है कि सारी ब्रांचेस आपकी जो करंटली हैं। गिट रिमोट क्या करता है, आपको वो बता देगा जो भी रिमोट रिपोजिटरीज, मतलब जो आपकी ऑनलाइन रिपोजिटरीज हैं, दोज आर कॉल्ड रिमोट्स, वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो करंटली क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो गिट रिमोट खाली आ रहा है। ठीक है, गिट रिमोट को अगर मैं हेल्प में डालता हूँ तो मुझे ये बता देगा कि सॉरी, गिट हेल्प रिमोट,
मुझे बता देगा कि ऑल द थिंग्स आई कैन डू विथ रिमोट। क्योंकि मुझे एक चीज़ ऐड करनी है, एक रिमोट ऐड करना है, तो वो मेरे पास कमांड यहाँ पे दे देता है, एंड जस्ट आई कैन कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर। ठीक है, तो गेट रिमोट अगर मैं अभी करूँगा तो मुझे बता देगा कि ओरिजिन के नाम से एक रिमोट है। तो ओरिजिन को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, अच्छा, गेट ओरिजिन को मुझे एक्सप्लेन कर देगा कि अब यहाँ पे एक रिमोट ओरिजिन के नाम से एक रिमोट वो किया गया है, सेटअप किया गया है, जिसको आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इफ यू जस्ट गो टू द लिंक और आपको ये रिपोजिटरी वो खोल देगा। ठीक है, कमिंग बैक, अब मुझे सारे चेंजेस जो भी मैंने लोकल रिपोजिटरी है अभी कनेक्ट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। डू सो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ब्रांच का नाम चेंज करके मेन करेंगे। ये चीज़ क्यों? दिस इज़ अ रिसेंट चेंज इन गिटहब कि वो पहले मास्टर ब्रांचेस यूज़ करता था, तो आप गिट ब्रांच करेंगे तो पहले मास्टर ब्रांच का नाम से ब्रांच आती थी। बट नाउ गिटहब इज चेंज conventions to call it call it man। तो /m की कमांड से आप जो रिपोजिटरी है उसका मास्टर से नाम चेंज करके मैन कर सकते हैं। तो आप जिस ब्रांच में हैं राइट नाउ दैट इज मास्टर, उसका आप नाम चेंज करके गेट मैन कर देते हैं। तो गेट ब्रांच तो मैं कॉपी कर देता हूँ स्पेशल, और आप नोटिस करेंगे कैसे मास्टर से मैन हो गई। गेट स्टेटस करूँगा तो यू कैन सी ऑन ब्रांच मैन। अब मुझे सारा कोड पुश करना है तो आई जस्ट कॉपी दिस, git push origin, अपना मैं यूज़र नेम अपना पासवर्ड रखूँगा। जिस लोगों ने क्रेडेंशियल मैनेजर इंस्टॉल किया होगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ गिट, वो सारी चीज़ें ये आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही सेटअप होंगी। बट सिंस आई हैव नॉट सेटअप, क्योंकि मेरी ऑफिस का लैपटॉप है, आई कीप चेंजिंग बिटवीन रिपोजिटरीज और बिटवीन अकाउंट्स, तो इट्स नॉट प्रेफरेबल फॉर मी। तो अगर मैं अगर रिलोड करता हूँ, यू कैन नोटिस कि जो भी चेंजेस मैंने किए थे लोकली मेरी जो भी रिपोजिटरी में चेंजेस थे वो सारे यहाँ पे आ गए। यू कैन नोटिस विद कमिट्स, सारी कमिट्स यहाँ पे आ गई, राइट। गोइंग बैक टू ऑल द ब्रांचेस। अच्छा, ब्रांच मैंने क्योंकि सिर्फ एक पुश करी है अभी, द मेन ब्रांच, तो दूसरी ब्रांचेस आप नहीं देख सकते अभी। और आगे चलते हैं, क्योंकि अब आपका कोड ओपन सोर्स हो गया तो आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक पोस्ट करता हूँ, एंड इट्स चैट में मैंने लिंक पोस्ट कर दिया, इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब आपका ऑनलाइन तो कोड आ गया, तो व्हाट इज अदर थिंग दैट वी वांट टू डू, दैट इज की सिंगिंग बिटवीन द गिट एंड गिटहब ब्रांचेस। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि मैं अगर कुछ यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी रैंडम चेंज डजंट मैटर चेंज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे चेंजेस आ गए, आई जस्ट स्टेज डोर चेंजेस, और इसके बाद मैं इसको चेंज या कुछ भी कमिट मैसेज। अच्छा, कमिट मैसेज आर सपोज टू बी यूजफुल, ठीक है, तो मेक श्योर आप, मैं जो रिसोर्सेज शेयर करूँगा आपको एंड ऑफ सेशन पे, वो देख लें कि कैसे कन्वेंशंस क्या होती हैं, कि कॉमन मैसेजेस वगैरह कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए देखने के लिए। मैंने चेंजेस किया, अब यू कैन नोटिस कि यहाँ पे वो चेंज नहीं आया होगा मेरे पास। आई एम स्टिल ऑन द मर्ज ब्रांच इज इवन वाली ब्रांच में मैं अभी। तो गेट लॉग करूँगा मैं कमांड, यस, तो यू कैन नोटिस मैंने चेंज तो किया है, लेकिन अभी भी मेरी रिमोट वाली जो ब्रांच है, यू कैन नोटिस हाउ इट्स स्टिल ऑन मर्ज ब्रांच। तो सारे चेंजेस पुश करने के लिए, to push it in the origin or push it into the repository that is hosted on GitHub, मैं एक कमांड लिखता हूँ git push। अगेन मेरा पासवर्ड और आईडी पूछेगा, एंड आई जस्ट एंटर दोस। आफ्टर git push आपके जो भी चेंजेस होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इफ आई रीलोड इट नाउ, तो आप देख सकते हैं कि सारे चेंजेस मेरे यहाँ पे आ गए, राइट। जो मैंने करंटली रैंडम चेंज किया था वो चेंजेस यहाँ पे आ गए। तो दिस इज पुश। अच्छा, अब अगर कोई दूसरा बंदा गिटहब से कोई चेंज करता है, या रिपोजिटरी लोकली अपने पास लेके उसको चेंजेस करता है, कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं script.py पे जाऊँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके, यू कैन डू दिस इन गिटहब टू विदाउट हैविंग रिपोजिटरी इन योर लोकल ब्रांच। अच्छा, मैंने एक चेंज किया, ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि चेंज टू, चेंजेस कमिट कर दिए। अब अगर आप कमेंट्स में जाएं तो यू कैन नोटिस देयर इज अ एक्स्ट्रा चेंज कॉल्ड चेंज टू, लेकिन
सिमिलर हमारे पास ये चेंजेस नीचे उसमें नहीं है, लोकल रिपोजिटरी में नहीं है। टू गेट दो चेंजेस आप सिंपली आप गिट पुल कर सकते हैं। अब गिट पुल से क्या होगा, जो भी चेंजेस आपने रिमोट में किए होंगे वो भी आपके पास लोकली आ जाएंगे। गिट पुल किया एंड यू गेट ऑल द चेंजेस दैट वर इन द रिमोट रिपोजिटरी। तो अब अगर आप गिट लॉक करते हैं, सी दो चेंजेस एज वेल, ठीक है। तो वी सॉ गिट पुश, वी सॉ गिट पुल। पुश कोड को रिमोट में डालने के लिए गिट पुश करते हैं, गिट को मतलब वहाँ से चेंजेस वापस लेने के लिए यू यूज गिट पुल। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। ये सपोज करें सी डी डॉट डॉट, मेरे पास ये सारी जो वो है ही नहीं। सपोज करें, इमेजिन करें कि हमारे पास है ही नहीं। तो अगर गेट स्टेटस करूँगा तो ओ सॉरी एल एस करूँगा तो मेरे पास अगर सपोज करें वो रिपोजिटरी मेरे पास एग्जिस्टिंग नहीं करती, तो यू कैन गो हैड एंड गिट क्लोन कि मेरे पास अगर एक चीज़ एक रिपोजिटरी रिमोट पे है लेकिन बस मेरे पास लोकली नहीं है, तो अगर वो ओपन सोर्स है, राइट, इट्स पब्लिक, तो आप गिट क्लोन की कमांड के साथ वो चीज़ लोकली अपने पास लेके आ सकते हैं। तो गिट क्लोन किया और मेरे पास वो रिपोजिटरी आ गई। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम गिट पुल? गिट पुल merges changes from your remote to your local repository, ठीक है। लेकिन git clone क्या करता है कि वहाँ पे रिमोट में जो पूरी रिपोजिटरी है उसको पूरी की पूरी रिपोजिटरी लेके वो एक फोल्डर बना देता है। तो अगर अब मैं ls करूँगा तो यू कैन नोटिस कि मेरे पास रिमोट वाली जो रिपोजिटरी थी वो आ गई मेरे पास। तो cd hit with git github, ठीक है। यू कैन नोटिस कि मेरे पास जो जो भी चेंजेस मैंने वहाँ पे किए थे, जो प्रीवियसली किए थे, डिलीट करने के बाद मेरे पास वही फाइल वापस आ गई। हाउ डू आई डू इट? जस्ट गिट क्लोन, क्लोन करने के बाद मेरी सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब मूविंग ऑन कि भाई हम चेंजेस वगैरह कैसे कर सकते हैं टू अदर कोड बेसिस। तो पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ कि अपनी ब्रांचेस में कैसे चेंजेस करते हैं। तो वो कैसे किया था हमने, गिट पुश, राइट। गिट पुश किया, जो भी चेंजेस मेरे लोकली थे वो सारे उसमें चले गए। बट वॉट इफ देयर इज अ ब्रांच दैट आई डू नॉट ऑन। अगर आप एग्जांपल ले लें तो इफ आई गो टू अ फ्रेंड्स रिपोजिटरी, ऐसा लैब के नाम से मेरे दोस्त की रिपोजिटरी भावल, व्हिच आई होप इज अटेंडिंग द सेशन राइट नाउ। तो इसको मैं अगर क्लोन करता हूँ तो गेट क्लोन, और मेरे पास वो रिपोजिटरी क्लोन हो गई एंड आई सी डी इनटू इट एंड यू कैन नोटिस ऑल द चेंजेस दैट ही हैज मेड, ठीक है। चार कमेंट्स देखें तो ये सारे कमेंट्स यहाँ पे आपको दिखते होंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, इफ आई ओपन इट विथ VS कोड और इसकी फाइल्स में जाके, ओके VS कोड इज नॉट ओपनिंग, इसको मैं बंद करूँ, राइट। सो यू कैन सी द चेंज फाइल्स। अच्छा, मुझे अगर कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, एनीथिंग डजंट मैटर, तो गेट स्टेटस अगर मैं करूँगा तो यू कैन नोटिस कि एक मॉडिफाई हो गया। अगेन गेट ऐड hello.txt, git commit, improved your code which I did not। तो git commit हो गया। git status करूँगा आप, सॉरी git log करूँगा तो you can notice there is an extra commit by तरुण कुमार at this, और उसका मैसेज क्या है, improved your code, ठीक है। अब मैं अगर git push करने की कोशिश करूँगा तो सुनिए, ठीक है, ओके। तो मुझे क्या बोल रहा है, अनेबल टू एक्सेस, डिनाइड टू सी, ठीक है। क्योंकि मैं ऑथर या कोलैबोरेटर नहीं हूँ ऑन दिस ब्रांच। जो बावल अगर चाहता तो मुझे कोलैबोरेटर डाल सकता था, बट सिंस आई एम नॉट अ कोलैबोरेटर ऑन दिस रिपोजिटरी, तो मैं कुछ भी चेंजेस जो मैं करूँगा लोकली मैं वहाँ पे पुश नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फॉर्क। अब वो कैसे होता है कि देयर इज एन एडिशनल स्टेप। वो क्या करेगा कि सिंस यू कैन ओनली मेक चेंजेस टू द रिपोजिटरीज यू ऑन, तो मैं एक कॉपी बना लूंगा इस पूरे कोड की। दैट इज सिमिलर टू गिट ब्रांच बट फॉर गिटहब ओनली। तो मैंने क्योंकि पहले ही करी हुई है यहाँ पे, तो जैसे जैसे आप फॉर्क करेंगे उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फॉर्क करने का। तो क्योंकि मैंने पहले ही फॉर्क करी हुई है, तो अब मैं जो भी चेंजेस करना चाहूँगा वो मुझे लाजमी अपनी अपने फॉर्क में करने होंगे, अपने वर्जन ऑफ द रिपोजिटरी में करने होंगे। तो वो कैसे करूँगा मैं?
मैं रिमूव करता हूँ ये वाली रिपोजिटरी, क्योंकि दिस इज़ द वर्जन दैट आई कॉपी क्लोन फ्रॉम भावल। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करूँगा। ऐसे कि ये मैंने कॉपी कर लिया एंड गेट क्लोन दिस। ओके वेट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग वी नीड। और गेट क्लोन, और क्लोन हो गया। cd scilab git status। तो अब मैं उस कोड बेस पे हूँ जो मैंने फॉर्क किया था गिटहब से, ठीक है। अब मैं जो भी चेंजेस करूँगा, आई कैन जस्ट डू मेक सम चेंजेस हियर, ठीक है। git status and you can see the changes I have made. Git add hello.txt, git commit, improved your code again, git status, ठीक है। अब मैं अगर git पुश करने की कोशिश करता हूँ तो आई कैन डू इट। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो जो रिपोजिटरी मैंने फॉर्क करी थी, एक अपना एक क्लोन बनाया था, ठीक है। अब मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ एंड यू कैन सी द चेंजेस आई हैव मेड इन 4 कमिट्स, इम्प्रूव योर कोड, ठीक है। बट स्टिल ये जो चेंजेस मैंने किए थे, दिस इज इन अ वर्जन जो मैंने फॉर्क किया था, सिर्फ क्लोन किया था। दिस इज स्टिल नॉट समथिंग भावल कैन सी। अब मुझे अगर भावल को दिखाना है ये चेंजेस और उसको बोलना है कि यार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आप अपने पास देख सकते हैं और अपने पास मर्ज कर सकते हैं, तो व्हाट आई डू इज कि मैं पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा। अब कॉन्सेप्ट आता है पुल रिक्वेस्ट का। जैसे मैंने अगर कुछ कोड लिखा और उसको मैं पुश करूंगा, फॉर्किंग के दौरान जो भी कोड अगर मुझे पेरेंट उसमें रिपोजिटरी में डालना है, मतलब भावल की रिपोजिटरी में वो चेंजेस कमिट करने हैं, डालने हैं, देयर विल बी अ पुल रिक्वेस्ट। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि यार रैंडमली कुछ भी चेंजेस कर लिए और कोई भी किसी भी ब्रांच में जाके डाल सकता है। तो ओपन सोर्स का ये मतलब नहीं है कि कोई रैंडम बंदा भी आगे कोड डाल देगा, पता ही नहीं चले। सो टू डू सो आप रिक्वेस्ट करेंगे उनको, यार ये चेंजेस हैं और आप रिव्यू करके ये चेंजेस आप करना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे होगा, तो मुझे फॉर्क करनी है और बेस्ट रिपोजिटरी है, ठीक है। और जो रिपोजिटरी मैंने डालनी है दैट इज माय वर्जन ऑफ द रिपोजिटरी, दैट इज सिनिटिक गिटलैब, एसआई गिटलैब। तो जो चेंजेस मैंने किए थे, यू कैन सी दोस चेंजेस हियर, ठीक है। और उसके बाद मैं जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट पुल रिक्वेस्ट और मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा, हाय भावल, आई हैव इम्प्रूव्ड योर कोड व्हाइल होल्डिंग अ लाइव सेशन, ठीक है। और मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। नाउ इट्स अप टू भावल कि वो सारे चेंजेस देखेगा, ये पुल रिक्वेस्ट जाके देखेगा और वो चेंजेस देखेगा कि हाँ दीज आर चेंजेस दैट रियली डज इम्प्रूव माई कोड। तो वो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा इस चेंजेस को, तो मेरी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और उसकी मर्ज हो जाएगा उसकी करंट कोड बेस में। तो अगर आई होप अगर भावल अभी कर सके तो कर ले, नहीं तो Okay, so Tarun, फिर should I share my screen so people can हाँ see? हाँ, यप Okay. यप, दैट विल बी कन्वीनियंट अगर तुम कर लो तो। I'll stop representing और भावल अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, you can see how you will be accepting the pull request right now. Yeah, I hope you guys can see. कोई confirm कर ले, screen नजर आ रही है? Yep, I can see. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक pull request का notification आ रहा है. Just go there and I see Tarun has called a pull request. So I can just open up and Tarun is saying कि hi Bahawal, I just improved your code. और यहाँ पे मुझे option आ रहा है merge the pull request. So I believe Tarun ने improve किया होगा code when there was no code. So let's just merge Tarun's की pull request and I just merge it. Okay, so अब हमारे master में तरुण की जो फॉर्क हुई ब्रांच थी, जो कमेंट थे, वो हमारे पास आ गए हैं। तो नाउ हमारे पास एंड में हमारे पास तरुण के आखिरी कमिट आ रहा है जो उसने 3 मिनट्स अगो किया था। और ये बाय डिफॉल्ट कमिट एक गिटहब ने क्रिएट कर दिया कि आई मर्ज माय ब्रांच टू तरुण मास्टर। ओके, आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो ओवर टू यू तरुण। Okay, thank you भावल। I hope सबको समझ आ गया होगा and I'm presenting my own screen now, which I hope it works. Okay. Is it visible to anyone? Is my screen okay? Thank you Malia। अच्छा, तो हमने अभी क्या क्या चीज़ें देखी, लेट्स गो ओवर द गिटहब पार्ट। तो हमने रिमोट देख लिया। रिमोट क्या होते हैं? ऑल द ब्रांचेस दैट आर ऑनलाइन, ठीक है। आपके पास जो भी चेंजेस हैं आपको उसको सिंक अप कैसे करते हैं, पुश करने के। आप जो भी चेंजेस लोकल में करेंगे आपको रिमोट में डालने हैं, पुश आपको पुल करने हैं
फैच मैंने नहीं ओवर किया, लेकिन फैच को अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इट्स लाइक पुल बट विदाउट मर्ज। तो आप फैच करने के बाद मर्ज की कमांड रन करेंगे, तो पुल ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप उसको फैच भी कर लें सारे कोड को जो ऑनलाइन है, और उसको मर्ज भी कर दें। तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड पुल इंस्टेड ऑफ फैच। हमने ये देखा कि कोई एग्जिस्टिंग गिटहब रिपोजिटरीज को उसको लोकली कैसे लेके आते हैं, क्लोन करते हैं, और फर्दर मोर अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं दूसरे कोड बेसिस में, तो यू कैन यूज़ फॉर्क और पुल रिक्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, तो अगर आप विजुलाइज करना चाहें फॉक्स को, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो कोई एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, उसमें से आपने कुछ कोड फॉर्क किया, राइट, और उसके बाद आप लोकली उसको क्लोन करेंगे लोकल कंप्यूटर पे, कुछ एडिट्स करेंगे, एडिट करने के बाद आप पुश करेंगे अपने फॉर्क में योर ऑन वर्जन ऑफ द रिपोजिटरी, और उसके बाद पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो जाएं, और उसको मैं बता दूं कि यार आई हैव मेड दीज चेंजेस जो अभी भावल ने किया, और पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी और सेंट्रल रिपोजिटरी में एक्सेप्ट हो गया। मूविंग ऑन, so now we know what are version control systems, we know Git is a version control system। अब ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करने के लिए गिटहब के साथ कनेक्ट होके गिट मुझे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने देता है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं कि यू कैन सी कि लिनक्स की जो मैंने एक्सप्लेन किया था रिपोजिटरी ओपन सोर्स है, एंड यू कैन एक्सेस इट बाय सर्चिंग इट लिनक्स, एंड आप देख सकते हैं कि टॉरवल्ड्स, लाइनस टॉरवल्ड्स जो बंदे का नाम है, और आप उसमें सारी रिपोजिटरी में जो भी चेंजेस वगैरह हुए हैं आप वो देख सकते हैं। एंड दीज आर ऑल द पुल रिक्वेस्ट जो दूसरे बंदे चाहते हैं कि यार आप ये चेंजेस करें विद इन द कर्नल। सो इट्स अ ह्यूज थिंग अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू लिनक्स होल ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल, तो दैट्स इट इज कंसिडर्ड अ ह्यूज थिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर कि भाई कैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स फिर गिट के साथ गिटहब के साथ कनेक्ट हो गए, गिट ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन एनेबल करता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये सारे चारों के चारों कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर हो गए, एंड आई एम काइंड ऑफ ओवर द टाइम। तो जल्दी जल्दी हेक्टोबर फेस्ट पे आ जाते हैं कि हेक्टोबर फेस्ट क्या है। अच्छा, हेक्टोबर फेस्ट इज़ एन ओपन सोर्स इवेंट जो अक्टूबर में, हर साल के अक्टूबर में होल्ड किया जाता है, और दिस इज़ द 2020 वेरिएंट ऑफ कोर्स। डिजिटल ओशियन, इंटेल और dev.to के तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप अगर मंथ ऑफ अक्टूबर में 4 पुल रिक्वेस्ट दैट इज़ की रेलेवेंट कोड बेसिस में अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं और वो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओपन सोर्स में और वो कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो यू कैन विन अ शर्ट और प्लांट अ ट्री। वो इट्स अप टू यू कि आप क्या कौन सा वो चूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी रिपोजिटरीज में ये चीज़ें एक्सेप्टेड हैं? अब ऐसे तो नहीं हो सकता आप रैंडमली किसी भी उस पर रैंडमली किसी भी रिपोजिटरी में जाके चेंजेस कर लें और वो आपके वो एक्सेप्ट हो जाए। तो द रिपोजिटरी मस्ट बी टाइटल टैग्ड हेक्टोबर फेस्ट, या आपका जो पुल रिक्वेस्ट है उसमें एक लेबल होना चाहिए कि हेक्टोबर फेस्ट एक्सेप्टेड। ये खुद द कंट्रीब्यूटर और द एक्सेप्टर ऑफ द पुल रिक्वेस्ट ये चीज़ देख सकता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन के लिए एक इवेंट है हेक्टोबर फेस्ट। तो कॉन्सेप्ट में आई होप दैट इज क्लियर। तो हेक्टोबर फेस्ट में अगर आपको वो करना है, रजिस्टर करना है, तो जस्ट गो टू हेक्टोबर फेस्ट। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट हैकिंग करेंगे, आप लॉगिन करेंगे एंड यू जस्ट रजिस्टर विद गिटहब, आपके गिटहब के साथ कनेक्ट होगा। तो आप जो भी पुल रिक्वेस्ट करेंगे विद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट इज कि अब आपके पास 5 दिन है एट मस्ट। ठीक है, अब जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने भावल की एक साइलैब की ब्रांच मैंने एक्सेप्ट किया था, तो इट इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, अब एक मैंने दूसरे चेंजेस भी किए हैं, वो रिव्यू होंगे फिर एक्सेप्ट हो जाएंगे, एंड यू दीज आर। अच्छा, फर्दर मोर क्योंकि इनएलिजिबल रिपोजिटरी थी जो मैंने एसएलएम में जो भी चेंजेस किए थे, तो क्योंकि वो एलिजिबल थी तो दिस डज नॉट काउंट इन योर कंट्रीब्यूशंस। तो यू हैव 6 डेज स्टार्ट फाइंडिंग रेलेवेंट रिपोजिटरीज जो आपको समझ आती हैं, आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ, एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इट। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेट्स गिव यू अ हेड स्टार्ट विद हेक्टोबर फेस्ट। तो फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट आप ये कर सकते हैं कि मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है हिटवुड गिट फीडबैक के नाम से। ठीक है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड एक्सेस इट, मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इस रिपोजिटरी में, क्योंकि दिस रिपोजिटरी इज हेक्टोबर फेस्ट टैग्ड, ठीक है, तो अगर आप इसमें जो भी पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे तो
अगर वो अप्रूव होती है वो आपके हेक्टोबर फेस्ट पे पुल फेस्ट में काउंट हो जाएगी। तो हाउ टू डू सो, कैसे आप करना चाहते हैं? तो दिस कैन एक्ट एज योर एक्सरसाइज एंड दिस कैन एक्ट एज पॉजिटिव फीडबैक फॉर अस टू। तो अगर आप यहाँ पे रिपोजिटरी में आए, ठीक है, रिपोजिटरी में यू कैन नोटिस readme.md एंड यू कैन नोटिस contributing.md। अच्छा, readme.md अगर मैं थोड़ा डिफाइन कर लूँ, जो आई फेल्ड डिफाइन इन द प्रीवियस few sessions, कि readme.md is the thing is a markdown file जो आप यहाँ पे आप रिपोजिटरी में एक्सेस करने के बाद देखेंगे। तो readme.md में मैंने सारी वो चीज़ लिखी होगी जो आपको यहाँ पे दिख रही है। Markdown is not a language, it is a language जो not a program language, it's a language जो आपको एक stylized आपको text दिखा देती है। तो Markdown में आप readme.md लिखते हैं, जो भी लिखते हैं आपको यहाँ पे दिखता है on the showcase of the रिपोजिटरी। उसके बाद contributing.md में आप वो चीज़ डिफाइन करते हैं कि कोई बंदा अगर आके कंट्रीब्यूट करना चाहता है आपकी रिपोजिटरी में तो उसमें क्या क्या होगा। तो मैंने ये रिपोजिटरी सिर्फ आज के सेशन के लिए बनाई है। contributing.md में जाएं, ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि जो जो अब सेशन में है आप क्या करेंगे, रिपोजिटरी को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, क्लोन करेंगे अपनी लोकल मशीन में क्लोन करने के बाद आप एक फोल्डर देख सकते हैं जिसका नाम है फीडबैक, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको क्लोन करने के बाद फीडबैक में जाएंगे तो फीडबैक में आपको दो फाइल्स दिखेंगे, schema.json और synthetic.json। अब ये क्या है, तो clone replace your folder called feedback and inside there will be schema.json। schema.json में अंदर जाएंगे तो एक json फाइल होगी जिसमें पूरा स्केमा डिफाइंड होगा कि जो आपको फिल करना है, ठीक है। अगर इसको फॉर्म को फिल करना है समझ लें तो दैट इज रेलेवेंट। तो आप क्या करेंगे, अपनी एक json फाइल बनाएंगे विद इन दिस फोल्डर, फीडबैक में अपनी एक फाइल बनाएंगे और अपने गिटअप के नाम के साथ, कैसे, गिटअप id.json, जैसे मैंने बनाई हुई है synthetic.json, ठीक है। अब वो बनाएंगे, उसके बाद आप जो भी कंटेंट्स हैं schema.json के ये सारे कॉपी करेंगे और इसको आंसर करेंगे, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे synthetic.json में किया हुआ है। अगर आप फीडबैक में जाके वापस synthetic.json में जाएं, you can see all the changes that I have made to the schema.json और synthetic is my GitHub ID। तो आप सिमिलरली क्या करेंगे, अपने ID के साथ .json फाइल बनाएंगे और इसमें सारे ये फिल करेंगे। अब अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है कि आपको GitHub ID लिखनी है अपनी वैलिड, आपका नाम, इंस्टीट्यूशन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज, किसी भी अकेडमी से आप आए हुए हैं तो आप जस्ट राइट द नेम। DSC चैप्टर आप किसी से अगर बिलोंग करते हैं तो जस्ट फिल दिस फॉर्म, जैसे मैंने DHS फॉर यूनिवर्सिटी में किया है, सिमिलरली दोनों। और इवेंट का रिव्यू, कि आपको इवेंट कैसे लगा, कि आपको समझ आया, कोई खामी थी, कोई कमी पेशी, कोई भी, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड जस्ट राइट इट। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उसके आंसर देंगे। अच्छा, आंसर 1 और आंसर 2 में कैसे आंसर देना है कि क्वेश्चन 1 क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्किंग एंड क्लोनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन 2 की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुल रिक्वेस्ट एंड सिंपली यूजिंग गिट पुश, दोनों चीज़ों में चेंजेस क्या है, ये आप फिल करेंगे, अपना फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो चेंजेस आप करेंगे गिट ऐड गिट कमिट करके आप अपनी फॉर्क रिपोजिटरी में पुश कर देंगे, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट बना देंगे, ठीक है। और अगर मुझे वैलिड लगी आपकी रिपोजिटरी, आपकी जो भी फॉर्क चेंजेस हैं उसके बाद पुल रिक्वेस्ट बनाने के मुझे वैलिड लगे तो मैं अप्रूव कर दूंगा और होपफुली आपके पास ये चीज़ अक्टूबर फर्स्ट में आपका पहला पुल रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगेन यू हैव जस्ट 5 days, ठीक है। 30 अक्टूबर को ये चीज़ 31 को ख़त्म हो जाएगी। सो मेक एज मच चेंजेस एज यू कैन, रेलेवेंट दैट इज, और स्टार्ट विनिंग द शर्ट्स, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं आपके लिए। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट, अच्छा मैं ओवर टाइम भी हो गया, 22 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, 1 घंटे का ओरिजिनल सेशन था, बट आई होप आई हैव नॉट बोर्ड यू। तो कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स आई कुड नॉट कवर ऑल द रिसोर्सेज। अगेन हमारा एक गिटअप क्रैश कोर्स हो रहा है DSA DSU के होल्ड, वो मैंने ही होल्ड किया। तो यू कैन जस्ट गो टू द प्ले लिस्ट और ये सारे राइट नाउ 3 वीडियोज़ हैं, प्रीमियर होने वाली है कल एक। तो जस्ट गो थ्रू दिस क्रैश कोर्स, रोज़ के तकरीबन मतलब 3 दिन में रोज़ की एक वीडियो हम पोस्ट करेंगे और इसमें सारे जो चीज़ें मैंने डिटेल में बतानी थी, जैसे गिट का डेटा मॉडल कैसे काम करता है, DAGs कैसे काम करती हैं और गिट रीबेस वगैरह और ऑल द एक्स्ट्रा स्टफ, थोड़ा स्लो तरीके में, थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल के तरीके में मैंने समझाया है। फर्दर मोर आज के सेशन के मैंने लेक्चर नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो यू कैन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट। मैंने यहाँ लिख देता हूँ, गिटअप पे मैंने सारी चीज़ें पुश करता हूँ, दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी। तो दीज आर ऑल द लेक्चर नोट्स जो मैंने आज के इवेंट के लिए लिखे थे, एंड यू कैन जस्ट गो ओवर देम एंड आप देख सकते हैं कि अगर आप सेशन मिस कर देते हैं या ये जस्ट हैव टू रिवाइज के सेशन में क्या क्या चीज़ें हुई थे, कमांड्स कौन कौन सी लिखी गई थी और वो चीज़ें क्या करती हैं, तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर नोट्स।
और इसके अलावा रिसोर्सेज भी हैं जो मैंने लेक्चर नोट्स में कवर किए हुए हैं, ठीक है। और जो थिंग्स मैंने नहीं कवर करी वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, so just go over them. गिट काफ़ी अच्छी चीज़ है, वेरी पावरफुल। अगर अक्टूबर फेस्ट के अलावा भी देखते हैं तो काफ़ी पावरफुल है। तो जस्ट आई सजेस्ट यू गो ओवर देम, एंड ऑफ कोर्स एक आवर का सेशन is never enough to completely understand what Git is and what GitHub is. Okay, that's about it. That's the end of event. We are wrapping up the sessions now. If anyone else has a Okay. question, please. Yes. Thank you so much, Tarun, for having here and tell about this all the stuff of Git and GitHub and Hacktoberfest. तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर लें. वी हैव टाइम टिल 31 अक्टूबर एंड आफ्टर 2 वीक्स आपको मेल आ जाएगी उनकी तरफ से कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई. Okay, thank you so much all for coming, and thank you so much, Tarun. So let's wrap up because it's 10:44 and I guess that everyone is so sleepy. तो कल यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है, so just खुदा हाफिज. Hafiz, take care. हाफिज. Allah Hafiz.